کے بعد جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر، ایک چوہا ان کے ڈیم کے اندر سوراخ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے؟ چوہا پتھر کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چن لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے دانتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا، اور چھوٹا سا سوراخ جو ہے ان کے ڈیم کے اندر بن گیا، اور وہ سوراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو ڈیم کا سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح کی بے شمار قومیں ہم سے پہلے زمین پہ آباد ہوئی۔ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے، اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں۔ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے، او قارون ذرا تو توریت پڑھ۔ اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے۔ قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے۔ وہ اخلاق مند بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ غور فرمائیں، جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی، اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ ذرا غور کریں، چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا، اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اس وقت لوگوں نے، جو خوش نصیب لوگ تھے، وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دوں گا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی، قارون حساب کرنے کے لیے گھر پہنچا، اور جب اس نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے بچا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے، حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائیں۔ اس نے کیا کیا، راتوں رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر پھسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا۔ عورت کو پیسے مل گئے، عورت اس کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے۔ قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا، قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس وقت اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ
औरत पर जो गुनाह करेगा उसको यही सजा मिलेगी। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, तसव्वुरे गुनाह भी नबी के करीब से गुजर करके नहीं जा सकता। लेकिन उसने चूंकि सवाल किया था, अल्लाह के नबी के जवाब देने का अंदाज ये था, उसने उस औरत को इशारा किया, ये क्या कहती है? औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि देखो ये औरत के साथ आपने ज़िना किया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात करते हो? उस वक्त उसने कहा, मूसा ये औरत कहने के लिए तैयार है। हजरत मूसा ने कहा, ए औरत ये बता, उस अल्लाह की कसम खाकर बता जिसने तुम्हारी नजरों के सामने फिरौन को गर्क किया, जिसने तौरात को मुझ पे नाजिल किया, उस रब की कसम खा करके बता, उस अल्लाह की कसम खा करके बता, उस रब की कसम जिसने तूर को तुम पर ऊंचा किया और उससे निजात अता फरमाई, उस रब की कसम खा के बता जिसने दरिया में तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। जनाबे मूसा का रोब का आलम ये था, जब आप जलाल में आते तो आपके कपड़ों के अंदर से आपके बाल बाहर निकलते और आपके अमामे से शोले उठते हुए नजर आते। नबियों में सबसे जलाली पैगंबर जनाबे मूसा अलैहि सलाम थे, लेकिन कौम ऐसी थी कि हजरत मूसा पर इतना बदतरीन इल्जाम सिर्फ दौलत की वजह से लगाया। जनाबे मूसा अलैहि सलाम के जलाल को और पैगंबराना मासूमियत के तकद्दुस को देखकर वो औरत पानी पानी हो गई, नजरें झुक गई और उसके बाद उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पाक दामन है, कारून ने मुझे दौलत के लालच में इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया। जनाबे मूसा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। और उसके बाद अर्ज की, मौला जो मुझ पर जिना का इल्जाम लगाएंगे फिर भी वो कौम रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम खुद तजवीज करो इसकी सजा क्या है। नबी तजवीज करेगा इसकी सजा क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया, इसे जमीन में धसा दिया जाए। फिर हजरत मूसा ने ऐलान किया, जो कारून के साथ है वो उठ करके चला जाए, जो मेरे साथ है वो मेरी तरफ आ जाए। दो बदनसीबों के अलावा सब हजरत मूसा के साथ रहे। हजरत मूसा ने कहा, ए जमीन इसको धसा अपने अंदर। जब वो कमर तक धसा तो रोने लगा, रिश्तेदारी की दुहाई देने लगा। जो दो लोग खड़े थे वो कहने लगे, अच्छा मूसा, कारून की दौलत को अपने कब्जे में करने का बहुत अच्छा बहाना आपने तलाश किया कि आप इसको जमीन में धसा कर आप इसकी दौलत पे कब्जा करेंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की, अल्लाह कारून की दौलत को इसके सर पे डाल दे और ये दौलत समेत धस जाए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम फरमा रहे थे, हुजूर ने फरमाया, आज तक कारून धस रहा है। चूंकि आका ने फरमाया आज तक धस रहा है, तो हम आज कहते हैं हमारा ईमान है, आज तक वो धस रहा है और क़यामत तक वो धसता रहेगा। मुझे बताओ, किसी कौम की तबाही में जराइम का कितना बड़ा रोल होता है। जब तक के कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, अल्लाह उस कौम को हलाकत की तरफ नहीं डालता। मेरा रब फरमाते, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर, अगर तुम अल्लाह के शुक्र वाले बंदे बनो। अजाब किसी को सजा क्यों दी जाती है? अगर कोई किसी को सजा देता है तो यह बताने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तू छोटा है। जब उसकी बड़ाई का सभी इकरार कर रहे हैं तो उसे यह बताने की जरूरत क्या है कि वो बड़ा है। हर वक्त तो लोग उसे अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये समुंदर से उठती हुई मौजें उसकी तकबीर का सबूत दे रही है। ये आसमानों की बुलंदी उसकी बड़ाई का सबूत दे रही है। ये रोजाना निकलता हुआ सूरज उसकी किबरियाई का सबूत दे रहा है। सूरज रोजाना बताता है कि मशरिक से निकलता हूं, फिर अल्लाह मुझे हुकूमत देता है और शाम होते होते वो मेरी हुकूमत को छीन लेता है। वो कौन है जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है और सुबह होते होते सितारों का नूर छीन लेता है? ये चमकते सितारे उसकी किबरियाई का सबूत है। ये डूबते हुए
सितारे उसकी किबरियाई का सबूत है, ये आती हुई रातें उसकी किबरियाई का सबूत है, ये आते हुए दिन उसकी किबरियाई के सबूत है कोई ऐसा जो रात लाए और दिन लाए, और फिर इतनी बड़ी रात जो पूरी दुनिया में अंधेरा कर देती है। जब सुबह आती है तो वो रात कहां चली जाती है, जब दिन आता है तो दिन रात का अंधेरा कहां लपेट दिया जाता है, और जब रात आती है तो दिन का उजाला कहां लपेट दिया जाता है। वो मेरा अल्लाह है जो रात को लपेटने की कुदरत रखता है, वो मेरा अल्लाह है जो दिन के उजाले को समेटने की कुदरत रखता है। वो कौन है जिसने लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक किया, वो कौन है जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, वो कौन है जो दरियाओं के अंदर मछलियों को रिस्क देता है, वो कौन है जो सदब के अंदर सीप के अंदर मोती पैदा करता है इंसान की अकल काम करने वाली कि एक बूंद से मेरा अल्लाह सीप के अंदर सदब के अंदर मोती पैदा करता है कोई ऐसी ताकत वाला, तो इंसान सजा उसे देता है जिसको ये बताना हो कि मैं बड़ा हूं। मेरे अल्लाह पूरी कायनात तो तेरी बड़ाई को तस्लीम कर चुकी है, ये दरख्तों की पत्तियां तेरी बड़ाई के गीत गा रही है, ये सूरज की शुआएं तेरी किबरियाई के तराने पड़ रही है, ये बादल का बरसना एक एक बूंद तेरी किबरियाई के गुनगुन गीत गा रही है, ये भौरे ये तेरी किबरियाई के गीत गा रहे हैं, ये मुस्कुराती हुई कलियां तेरी किबरियाई के गीत गा रहे हैं, ये खिलते हुए फूल तेरी किबरियाई के गीत गा रहे हैं। सजा तो उसको वो देता है जो अपनी बड़ाई छांटना चाहता है, सारी कायनात उसे बड़ा मान रही है, वो कहता है मैं क्या करूंगा तुम्हें सजा देकर। अल्लाह तुम्हें सजा देना नहीं चाहता अगर तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। वो सजा क्यों देता है? जब तुम उसकी नाफरमानी करते हो तो वो तुम्हें होशियार करने के लिए झटके देता है, और उसके बाद अगर तुम होश में आ जाओ, तुम तौबा कर लो, तो फिर वो तुम पर नेमतों की बरसात करता है, और अगर तुम होश में ना आओ तो फिर तुमसे इज्जत के साथ जीने का हक भी छीन लेता है। अल्लाह का कुरान हर सूरत के अंदर उम्मतों की दास्तान मौजूद है, लेकिन यहां मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है, वक्त की किल्लत भी हमारे दरमियान है, वरना हम जायजा लेते पूरे कुरान मुकद्दस के अक्सर कसस का और आपके सामने पेश करते। आप मुझे बताओ, इस वक्त तो पूरी दुनिया का इंसान परेशान है, बादशाहों से लेकर रियाया तक, अमीरों से लेकर गरीब तक, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अक्सरियत दो तबकों में कौम बढ़ चुकी है। एक के हाथ में छुरी या हथियार है और दूसरे की जान जा रही है, या मरने वाले या मारने वाले, दो तबके बन चुके हैं। मुल्क शाम ऐसे तबाह हो रहा है जैसे बकरियों को ज़िबा किया जाता है, वैसे शामियों के गले पर छुरी चल रही है। वो यमन मुबारक जिसके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उस यमन की सरजमीन की ईंट से ईंट बज रही है। वो बगदाद जिसको सदियों से अरूसुल बिलाद कहा जाता था, वो बगदाद मुकद्दस की सरजमीन खून से रंगीन हो रही है। दुनिया के हालात ये है कि अल्लाह अकबर, कहीं जाने तलफ हो रही है तलवारों से, कई बम धमाकों से। अफ्रीका की सरजमीन पर भूख की वजह से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बैतुल मकदिस की सरजमीन पर मुस्लिम बच्चियों की आबरू सरे बाजार लूटी जा रही है। ए उम्मते मुहम्मदिया, ये मुसीबत के बादल हमारे सरों पे क्यों मंडला रहे हैं? रब तबारक व तआला ने ऐलान किया, फअतबिरू या उलिल अब्सार, और इस वक्त तो माशियात के माहिरीन कह चुके 2016 ऐसा मंदी का साल होगा कि अब हालात पलटते हुए नजर नहीं आते। 2017 तक के मार्केट दुरुस्त नहीं हो सकता, ये पेशिन गोइयां हो चुकी। हालांकि ऐसी किसी पेशिन गोई पर हम अकीदा नहीं रखते, लेकिन उनके कहने के मुताबिक पूरी दुनिया
معاشی حالات 2016 میں بد سے بدترین ہوں گے. زمین کی قیمت گھٹ رہی ہے, سونے کی قیمت گھٹ رہی ہے, یورو کی قیمت گر رہی ہے, پوری دنیا میں ہما ہمی ہے. لوگ چندہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, لوگ شادیوں کی تاریخ پکڑنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یاد رکھو, میرے اللہ نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیے, میرے رب نے تم پر دولت کے دروازے